A gift of chapels. मोबाइल को रख दो यतेंद्र। स्क्रीन पे टच नहीं करना है। ओके सर। देखिए, a smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually, with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The mark for the big two toes were long and crowny. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. Basically, ये जो पोयम है, ये जो चैप्टर है, this chapter is about, this story is about a young girl who lived in Madras. Her name is Mridu. Uh, she lived in Madras, and she was growing up with Tapi. Tapi is her grandmother, and Thatha, her grandfather. Basically, Mridu was living with her grandfather and grandmother, ठीक है, in Madras. And one afternoon, her grandmother took her to her aunt's place. Aunt's name is Rukumani's, ठीक है ना. And in Rukumani's place, she met with her cousins. Cousins were Lali, Ravi and Meena. ओके, समझ में आई बात कि जो स्टोरी है वो किसके बारे में है. मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ में आई क्या? यस सर, आ गई है ना. यस सर, आ गई. अब ये जो मृदु है, इसने वहां जाके क्या किया अपने कजन्स के साथ, वो आप पढ़ेंगे चैप्टर में. जब वो गए उनके पास, तो she knocked at the door of Rukumani's house. She opened the door with a smile, ठीक है ना. And her cousins Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu inside the house. मतलब जैसे ही वो मृदु को देखा, उसके कजन्स आए और उसको अंदर खींच लिए, और उसने बोला मृदु ने कि वेट, मेरे को मेरी जो स्लीपर्स हैं वो तो उतारने दो एक बार. उसने उसको उतारी और एक बाकी की जो स्लीपर्स थी वहां उसको रख दिया. तो स्लीपर्स वर ग्रे, एक्चुअली विद डस्ट. जो स्लीपर्स थी उसकी वो ग्रे हो गई थी, किससे? धूल मिट्टी से, ठीक है ना. एंड द टो मार्क, टो क्या होता है?
अंगूठा होता है, टो। यस सर। यस सर। तो स्लीपर पे वो नहीं होता, जब ज्यादा देर तक पहनते हो या बहुत पुरानी हो जाती है तो टो के मार्क्स चप्पल पे इनग्रेव्ड हो जाते हैं, यस सर, हो जाते हैं। है ना। तो बस वही था कि उसके भी जो जितनी स्लीपर्स पड़ी हुई थी उसमें वो सब में टो के मार्क्स जो हैं वो लग गए थे, ठीक है ना। और बाद में रवि ने उसको ड्रैग किया बैकयार्ड में और एक दूसरे के साथ खेलने लग गए वो लोग। देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। अब वो रवि ने मृदु को उसको ड्रैग किया अंदर, बैकयार्ड है ना, मतलब घर के पीछे जो एरिया होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं। बैकयार्ड पे गए, वहां पे बुशेस थी, वहां गए, वहां पे क्या था, फुटबॉल थी फटी हुई फुटबॉल जिसके अंदर मिट्टी से भरी हुई थी वो, और वो बेसिकली उसके साथ ही खेल रहे थे। और जो एक बिल्ली का बच्चा था ना, किटन, वो उसको चाट रहा था, मतलब जो मिल्क है ना, उसको मिल्क को कोकोनट के शेल में रखा हुआ था मिल्क, और उसको वो चाट रहा था। फिर क्या हुआ, वी फाउंड हिम outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama house if she knows we have a cat. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उन्होंने कैट को कहाँ पे देखा, घर के बाहर जो गेट है वहां पे देखा, और वो क्या कर रहा था, बिल्ली का बच्चा जो आवाज निकाल रहा था, म्यू म्यू, ठीक है ना। मीना बोलती है अम मीना बोलती है कि इट्स अ सीक्रेट, ये जो हमारे पास कैट है ये एक सीक्रेट है, अगर पता चल जाएगा पद्दू मामा को तो वो जो पति है वो चला पद्दू मामा के हाउस के लिए चला जाएगा अगर उसको पता चल गया कि हमारे घर में कैट है। अपू, people are always telling us to be kind to animal, but when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitten? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? देखो, बेसिकली ये जो PAATI है ना, इसको ये तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बोलते हैं, ठीक है। यस सर। अब वो बोल रहे हैं कि रवि और ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर सब लोग बोलते हैं कि एनिमल्स के साथ काइंड रहो, उनको अच्छे से देखभाल करो, लेकिन क्या है ना, जब भी हम करते हैं उनके साथ, खेलते हैं उनसे, अच्छे से बात करते हैं, तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। तो रवि बोलता है कि प्लीज जो बिल्ली का बच्चा है उसको बाहर मत बुलाओ, उसको जहां पे है उसको वहीं रहने दो। और तुमको पता है कि कितना एक मुश्किल है अगर बिल्ली के लिए दूध, थोड़ा बहुत भी दूध लेके आना। तो बोल रहा है कि मैं उसके लिए दूध लेने गया था तो ग्रैंड मदर ने मेरे को देख लिया, और मैंने उसको, ग्रैंड मदर को बोला कि भाई मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं ये दूध लेके आया हूँ। तो वो क्या थोड़ी आ, शक की नज़रों से मुझे देखने लग गई। इसकी वजह से मुझे क्या, वो जो ग्लास में दूध था उसको पीना पड़ गया ताकि वो शक ना करे।
फिर उसके बाद वो मेरे से ग्लास लेने लग गई, बोले कि मैं धो दूंगी। तो अब उसमें तो दूध बचा था, तो जो रवि बोला कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, मैं अपने आप धो लूंगा। और वो टम्बलर लेके जिसमें दूध था वो लेके बैकयार्ड में चला गया वो, और जाके उसको रख दिया। अगर उसकी जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ी सी सस्पिशियस होती तो क्या होता, वो अपने मामा के घर चली जाती, कि क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये जानवर घर में। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब इन्होंने क्या ना, जो कैट है उसका नाम महेंद्रन रख दिया। तो अब क्या हुआ, वो दूध लेके तो आया था लेकिन उसको खुद को पीना पड़ गया क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने देख लिया था। तो ये बोल रहे हैं कि अब हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि हम इसको फीड कर सकें, इसको कुछ खिला सकें महेंद्रन को। महेंद्रन कैट का नाम है, महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। तो मृदु पूछती कि महेंद्रन कौन? बोले अच्छा आप तुम लोगों ने ये छोटी सी बिल्ली जो है इसका नाम महेंद्रन रखा है। तो मृदु जो थी वो बहुत इंप्रेस हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी किट कैट नेम। बोली ये तो बिल्कुल एक रियल नेम है, और ऐसा नहीं कि कोई जो बिल्ली के बच्चे को क्या कुछ भी नाम देते हैं ना, कि क्यूट सा कोई नाम देते हैं बिल्ली जैसे ही। तो बोले वो नहीं, तो प्रॉपर एक नाम दिया है तुम लोगों ने। तो वो बोलते हैं उसके जो कजन है, बोले कि एक्चुअली उसका नाम पूरा तो है ना महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनी पुनाए, ये है MP पुनाए फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। बोले अगर तुमको शॉर्ट में बोलना है तो शॉर्ट में उसका नाम है MP पुनाई, और वैसे इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। अगर तुमको शॉर्ट में बोलना है तो शॉर्ट में बोल सकते हो इसको। He is a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane. And do you know what the emblem of the ancient Pallava king was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. तो वो बोलता है कि रवि उसको कि ये बहुत ही फाइन ब्रीड है कैट की, बिल्कुल लायन जैसी। देखो इसके फर कितने अच्छे हैं। और वो बोलता है कि तुम्हें जो पल्लवा किंग था उसका एम्बलम याद है? और एक्सपेक्टेड था उसको कि यार मृदु को तो पता होगा, लेकिन मृदु हंसने लग गई। आई थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई शो यू समटाइम, इट्स क्लियर you don't know a thing about history, haven't been to mala महाबलीपुरम, हैव यू? वो जब उसने मृदु से पूछा कि तुम्हें पता है उसका एम्बलम क्या है पल्लवा किंग का, तो उसको हंसने लग गई। तो बोलता है अच्छा मैं तो जोक कर रहा हूँ कोई, और इससे पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम महाबलीपुरम तो शायद से गई नहीं होगी। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatha, Thathas, 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 etc., etc., etc. Fact is, Mahindran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. अब क्या हुआ, वो रवि उसको बोलता है तुम महाबलीपुरम तो शायद से गई नहीं होंगी। बोले वेल जब हम अब क्लास हमें लेके गई थी महाबलीपुरम, तो मैंने क्या, आई सॉ कैट के जो दादा हैं, मतलब बोला आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज मतलब कैट का, महेंद्रन का। बोले थातास 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 थातास, मतलब ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर हुआ ना, वहां तक के ग्रैंडफादर की फोटो देखी थी। और बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो हमारी कैट है, ये एंशियंट कैट जो थी ऋषि कैट, उसकी डिसेंडेंट है, मतलब उसी के वंश की है ये। बोले और मैं तुमको रिमाइंड करा दूं
कि एंशियंट इजिप्ट जो था उसमें तो कैट्स को वर्शिप किया जाता था. हाउ he looked the he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. मृदु और मीना ने जब ये सुना कि एंशियंट इजिप्ट में वर्शिप किया जाता था कैट को, तो वो थोड़ी सी सरप्राइज हो गई. बोले कि उस बात का इस बात से क्या लिंक है. तो बोलता है अच्छा, लेट मी आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड. नो, गॉडेस बास्टेड. बास्टेड, yeah, that's it. So, well, one of the descendant of that cat goddesses was a stowaway in one of the Pallava's ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi. Flourish his twig at Mahindran, MP Punai here. Whoop! He shrieked, very pleased with himself. जब मृदु ने उससे पूछा कि जो तुम बता रहे हो इजिप्ट में और ये जो महेंद्रन है इससे क्या लिंक है उस बात का, तो बोलता कि रुको मैं बताता हूँ. ये जो कैट है ना, ये इजिप्ट जो गॉडेसेस है उसकी डिसेंडेंट है. बोले वो पल्लवा के किंग में, जो पल्लवा किंग था उसके शिप में या महाबलीपुरम आ गई थी. और तब ही ये जो महेंद्रन है, ये इसके जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब इसके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो फ्लरिश करने लग गए. ठीक है ना. और वो उसके बारे में खूब बोले जा रहा था रवि, MP पुनाए के बारे में, और बहुत ही खुश था खुद से. Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of coconut shell. महिंद्रा जो था वो अलार्म था, ऊपर देख रहा था और धीरे धीरे अपने जो क्लॉज हैं, पंजे हैं, उनको शार्प कर रहा था. किससे? कोकोनट शेल के एज से. बट वर्स देन रवीज awful whooping was a screech from the window. वो बोला, ये मतलब उसको बोल रहे हैं कि जो रवि ने जो एक आवाज निकाली थी वो पीक, वो बहुत ही ऑफुल थी और क्रीपी सी थी, वियर्ड साउंड था. इफ मृदु was started, MP Punai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tripped a few chilies over him. Mia, he howled miserably. अब वो बोल रहा है कि ना MP पुनाई जो मृदु थी वो उसको MP पुनाई को देखने लग गई और स्टार्टल करने लग गई. ठीक है. और सरप्राइजली देखने लग गई उसको. और जो MP पुनाई था वो थोड़ा सा डरा हुआ था, मतलब साइड में खड़ा हुआ था, बार बार कूदे जा रहा था. और बैम्बू ट्रे में जो चिली थी उसको, वो सूख गई थी तो उनको खाने की कोशिश कर रहा था. मतलब वो अपने में मस्त था, लेकिन उसको थोड़ा सा डर लग रहा था बाकी लोगों से. और वो कंफर्ट उसको नहीं मिल पा रहा था MP पुनाई को. समझ में आई है?